विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। 2025 में प्रयागराज में कुंभ है और आज हमको ऐसा लगा कि हमारे पोदार जी ने, अशोक पोदार, डॉक्टर अशोक पोदार जी ने यही हमको कुंभ की झलक दिखा दी है। जो गंगा सागर यात्री जो हैं उनको सब रकम का सुविधा हो, इसके लिए अपना कैंप खुला है। इसमें 24 घंटा भोजन है, 24 घंटा चाय है, 24 घंटा चिकित्सा है, 24 घंटा डॉक्टर है। আসছে মকর সংক্রান্তি। এই উপলক্ষে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরে একটি পুণ্য তিথিতে পুণ্য স্নান করে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তো আসেই, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং ভারতের বাইরে থেকেও পুণ্যার্থীরা আসে এই কপিলমুনির আশ্রমে এবং গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নান করতে। এই পুণ্য স্নান করতে যাবার আগে কলকাতায় সাময়িক বিরতি। এখানে বাবুঘাটের নিকট আউটরাম ঘাটে সরকারি ট্রানজিট ক্যাম্প, সেখানেই পুণ্যার্থীদের সাময়িক বিশ্রাম। এখানে সরকারের নানা সাহায্যের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি সংস্থা এই সমস্ত পুণ্যার্থীদের সাহায্য করে থাকে। অগণিত এই পুণ্যার্থীদের সাহায্য করতে অনেক সামাজিক সংগঠন, গণসংগঠন, সমাজসেবীরা এই ট্রানজিট ক্যাম্পে সাহায্য করে থাকে। তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য এবং স্বনামধন্য সংস্থা হলো সিটিজেন ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এবং ডক্টর অশোক পোদ্দারের পোদ্দার সেবা ট্রাস্ট। তারা গত 1984 সাল থেকে পুণ্যার্থীদের জন্য অনেক রকমের সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে। তাদের 40 নম্বর ক্যাম্পে পুণ্যার্থীদের জন্য সারাদিনে থাকা, খাওয়া এবং চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা বিনামূল্যে করে থাকে। সকালে প্রাতরাশ থেকে শুরু করে দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ এবং রাতে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া বিকেলে টিফিনের ব্যবস্থা এবং যে কোনো পুণ্যার্থীদের যদি কোনো রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তার জন্য ডাক্তার, নার্স, অক্সিজেন, অ্যাম্বুলেন্স সমস্ত রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও ডক্টর অশোক পোদ্দার সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে দুস্থ রোগীদের সারা বছরে নানা রকমভাবে সেবা করে থাকে, অস্থায়ী শিবির করে, এবং সিনিয়র সিটিজেনদের সুস্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী শিবির করে সেখানেও চিকিৎসা করে থাকে। এছাড়া গোমাতা সেবা করার জন্য ডক্টর অশোক পোদ্দার কল্যাণীতে একটি গোশালার ব্যবস্থা করেছেন। কল্যাণীর সাহেব বাগানে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য এবং বিশাল আকারের জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরি হচ্ছে সর্বসাধারণের জন্য। সিটিজেন্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এবং পোদ্দার সেবা ট্রাস্টের এই 40 নম্বর ক্যাম্পে তারই শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল গত 10ই জানুয়ারি মধ্যাহ্নে। এই 40 নম্বর ক্যাম্পটি উদ্বোধনে এসেছিলেন অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, তার মধ্যে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল স্বামী বিশাখানন্দজি মহারাজ। আগামী 17ই জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য এই ক্যাম্প সর্বসময়ের জন্য খোলা থাকবে। দীপ রায় রিপোর্ট, নিউজ আইল্যান্ড 15। हमको विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। 2025 में प्रयागराज में कुंभ है और आज हमको ऐसा लगा कि हमारे पोदार जी ने, अशोक पोदार, डॉक्टर अशोक पोदार जी ने यही हमको कुंभ की झलक दिखा दी है। और मैं तो आपको ये कहूँ कि हमारे कुंभ के मेले में सीमित लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ असीम लोगों को देख करके और उनके भोजन, निवास, औषधि, इलाज, हर प्रकार की जो है व्यवस्था करके अशोक पोदार जी ने धन्योग्रस्त आश्रम का एक रोल अदा किया है और समाज के लिए, संसार के लिए एक प्रेरणा है कि परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए इस प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति परमार्थ की पराकाष्ठा तक जाता है। गौशाला से मैं इनके साथ में, गौशाला में इनका जीवन परोपकारी है। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा
धाराधरो वर्षति नात्म हेतु परोपकारा शताम विभूतया। वृक्ष अपना फल अपने आप नहीं खाते, नल जल नहीं पीते, बादल अपना बरसात नहीं करते, वो दूसरों को देते हैं। ऐसे ही उनकी बहुत बड़ी लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक योजना। लौकिक योजना में ये सेवा है, गौ सेवा है, ये सेवा लौकिक योजना में है। गौ सेवा और गोवर्धन वहाँ पर भगवान जगन्नाथ की सेवा पारलौकिक सेवा है, और साधु संतों से हर समय सत्संग करते हैं, ये परमार्थी सेवा है। इसलिए ये परमार्थी जीव है और परमात्मा इनके परमार्थ में उन्नति करे, यही हम आशीर्वाद देते हैं। जगन्नाथ मंदिर बन रहा है, उसका हमने शुभारंभ हमने किया है। और जब ये ऐसा पुण्य कर रहे हैं तो इस पुण्य के प्रताप से वो जगन्नाथ मंदिर भी जल्दी बन जाएगा। राम राज्य का समय जो आ गया ना, तो इसके लिए गंगा सागर के बाद में सभी तीर्थयात्री अयोध्या जाए, यही हमारा कामना है। वहाँ का मंदिर को भव्य बनाए। उसके साथ में हमारे जो गंगा सागर यात्री जो हैं, उनको सब रकम का सुविधा हो, इसके लिए अपना कैंप खुला है। इसमें 24 घंटा भोजन है, 24 घंटा चाय है, 24 घंटा चिकित्सा है, 24 घंटा डॉक्टर है, 24 घंटा सभी सेवाएं जो है 24 घंटा है। तब यहाँ पर ऑक्सीजन का व्यवस्था है, बेड का व्यवस्था है, नेबुलाइजर का व्यवस्था है, डॉक्टर का व्यवस्था है, नर्स का व्यवस्था है, मेडिसिन का व्यवस्था है। कितना तारीख तक चलेगा ये 16 तारीख का और 17 तारीख का सुबह तक चलेगा। आज से 17 तक तो बहुत सारी ढेर सारी तीर्थयात्री आएगा। कितना यात्री को खिलाएगा, कितना यात्री को रखने का व्यवस्था? देखिए, यहाँ पर तो हमारे संस्था में प्राय 1200 आदमी ठहरने का व्यवस्था है, और उनका सेवा में सारा जीवन लगा हुआ है। उनका सेवा जितना भी करेंगे कम है। जितना तीर्थयात्री आएगा उसको ही खिलाएगा, कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे जीवन अनलिमिटेड है, जब तक लिमिट है तब तक ही चलेगा, उस तरह से हमारा सेवा भी चलेगा। খুবই সুন্দর, অভূতপূর্ব। ডাক্তারবাবু এবং কয়েকজন মিলে আমাদের যে গঙ্গাসাগরে যে সেবা ক্যাম্প করেছে, এখানে ক্যাম্পে প্রচুর দূর দূর থেকে আসা বহু যাত্রী এবং দর্শনার্থী এখানে রেস্ট নিচ্ছে। এনারা আবার যাবেন, আবার নতুন ঘুরবে। এই কয়েকদিন আমাদের এই পোদ্দার ট্রাস্টের তরফ থেকে, আর সঙ্গে তারা কয়েকজন ট্রাস্ট জুড়েছে, তাদের তরফ থেকে আমাদের এটা নিঃশুল্ক সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তো এত অভূতপূর্ব ব্যবস্থা, পোদ্দার ট্রাস্টের তরফ থেকে অভিভূত হয়ে গেছি। আর স্বামী বিশ্বকানন্দজি মহারাজও এসেছিলেন, এর উদ্বোধন করলেন, আমিও সঙ্গে ছিলাম উদ্বোধনে। আমাদের এই মাধ্যম থেকে জানাতে চাই, আপনাদের যদি কোনো গঙ্গাসাগরে কোনো থাকা হয়, আমাদের ক্যাম্প 40 নম্বর ক্যাম্প, এই ক্যাম্পে আসুন, আপনারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন এই গঙ্গাসাগরে যাওয়ার জন্য। আমার নাম আচার্য কৃষ্ণ আর্য, কল্যাণী সাহেব বাগান আমাদের আশ্রম, পোদ্দার সেবা ট্রাস্টের তরফ থেকে। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, गंगा गया था। हाँ, हमारा 65 साल हो रहा है गंगा सागर मेला करते हुए। हाँ, सिटीजन्स वेलफेयर काउंसिल इस संस्था का स्थापन किया और आज तक जो है चल रहा है। और इस बार बहुत तीर्थयात्री, हाँ, बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री आया। हम लोग को सेवा करने का मौका मिला है, और हम लोग आशा करते हैं कि इन लोगों को सही सेवा हम लोग दे पाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम बोलिए। सूरज देव सिंह, अध्यक्ष। আমি এবার প্রথমবার গঙ্গাসাগরের সেবাতে প্রথমবার ডাক্তারবাবুর থ্রু এখানে পেলাম, স্থান পেলাম। ওই জন্য আমি ওনাকে ওখানে খুব কৃতজ্ঞ মনে করছি নিজেকে, যে আমি এই জায়গায় আসতে পেরেছি এবং এতগুলো লোকগুলোকে দিলাম, এতগুলো পুণ্যার্থীর সামনে যে আমি আমারটা দিচ্ছি, এটা খুব আমাকে ভালো লাগলো এবং জীবনের একটা অভিজ্ঞতা হইল। এই ব্যাপারে ডাক্তারবাবুকে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনার নাম বলুন। আমার নাম শ্যামসুন্দর শাহ। हमारी गौ सेवा की तरफ से, गौ सेवा परिवार की तरफ से कैंप लगाया गया है, जहाँ पे जीवामृत, गोनाइल इत्यादि तैयार होता है। और ये सब तैयार होता है, तो इस कैंप में आज मैं जो देख रहा हूँ, लाखों लोगों की उपस्थित हो रही है। और यहाँ पे जो व्यवस्था पोद्दार सेवा ट्रस्ट द्वारा की गई है, तो इससे जो गोनाइल वगैरह के लिए हम लोगों ने एक साइड में
स्टेप लगाया है, तो उसमें हम पूरी जानकारी देंगे कि गौ माता के गोबर से, गौ माता के मूत्र से क्या क्या बन सकता है। भविष्य में गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। और आज बड़ा ही आनंद का सौभाग्य है, साधु महाराजों का दर्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ। और मैं डॉक्टर अशोक पोद्दार सेवा ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए ऐसा सौभाग्य बनाया और निरंतर आपकी ये सेवा चलती रहे, यही गौ माता से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब जिस हिसाब से मानव सेवा के साथ में हॉस्पिटल नर्सिंग होम चलाने के साथ में गौशाला भी देखते हैं, ये अतुलनीय है। आदमी गौशाला में लगा हुआ तो गायों की सेवा की तरफ ध्यान देता है, मानव की तरफ देता है। और मेरा सौभाग्य है कि रतनलाल जी के थ्रू मैं इस सेवा कार्य में जो भी अंश में बहुत ज़्यादा कुछ भी सहयोग नहीं है मेरा, पर एक संस्था का प्रेसिडेंट होने के लिए साथ में रतनलाल जी ले रहे हैं, इस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत समय दे पा रहा हूँ। और इसके लिए पोद्दार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गौशाला को जिस हिसाब से समय देते हैं मानव सेवा के साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। मैं श्रीभूमि विकास मंच का अध्यक्ष धर्मचंद भंडारी। हम प्रेम शंकर पोद्दार है। हम लोग आज गंगा सागर का उद्घाटन आज किया गया, गंगा सागर मेला का। यहाँ पर एक हम लोग कैंप लगाए हैं सिटीज़न वेलफेयर काउंसिल बोल करके, जिसमें हमारे डॉक्टर अशोक पोद्दार जी इससे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ में हम लोग मिल करके इस सेवा की भावना हम लोग लेकर के इस सेवा के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। आशा करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी दर्शनार्थी हैं, जो भी गंगा सागर जाने वाले यात्री हैं, वो ज़रूर इस सेवा का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। सिटीजन्स वेलफेयर काउंसिल और पोद्दार सेवा ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से पिछले कई एक सालों से जो सेवा का भाव लेकर के गंगा सागर का शिविर लगाते हैं आउटरम घाट में, उसे देखकर मैं बहुत ही ओतप्रोत हूँ। इनकी सेवा की भावना देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं इनको कोई असुविधा नहीं होती है। और इनके संयोजक को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन लोगों के सेवा की भावना के चलते ही हम लोग भी यहाँ आकर के कुछ सेवा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो इस तरह की सेवा जो है ना, वो हमेशा ही चलता रहे और हम लोग भी अपने तरफ से यथासाध्य जितना भी हो सके सेवा कार्य में जुटकर मिलजुल कर साथ दूँ। आपका नाम बोलिए। चंद्रशेखर पोद्दार।